Welcome back, friends. In our last lecture, we had studied about the moment of inertia, the introduction part of moment of inertia. What is the moment of inertia? What is the importance of moment of inertia? And also we had studied about the torque, the relation between the torque, moment, right? There are two types of moment of inertia. One is the simple moment of inertia, it means the bending moment, right, where the force is produced on the cantilever beam or anything, then it's a bending moment of inertia. And also the second part is the polar moment of inertia. Whenever the shaft is twist, the shaft or beam or any kind of part is going to be twist, then the moment which is generated is the polar moment of inertia, right? So twisting moment, whenever the twisting moment is generated, then the moment of inertia is taken as the polar moment of inertia. And whenever the bending moment is produced, then the moment of inertia is taken as the simple moment of inertia. Now, first we had repeated what is the moment of inertia. Moment of inertia is the second moment of an area. Consider a lamina of area A. Suppose we have a unequal shape, right? Then the area is A for that uneven shape. Let this lamina is split up into an infinite small elements even of area dA, right? So if we are taking a small parts or small elements, then we have to take all the elements mass, right? All the elements mass to taken consideration of moment of inertia. X1, X2, X3 are the distance of small elements from y axis. So it is the distance from the axis of rotation. So it's become a radius, right? R. Y1, Y2, Y3 are the distance of the small elements from OX axis, right? So there are two different dimensions or two different distances are taken. One is the from X axis and one is the from OY axis. So we have the directional moment of inertia. तो यहाँ में क्या करना है कि आप जब भी डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हो, मींस कि जहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत है, क्लियर, मतलब कि आपके पास दो प्रॉपर्टी थी, आपको अगर याद हो कि वह एक प्रॉपर्टी डायरेक्शन जहाँ पे ऐड होता था और एक प्रॉपर्टी में डायरेक्शन ऐड नहीं होता था, राइट? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है. मतलब कि आप जहाँ से भी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ठीक है, किसकी कौन सा डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर आपका मास जहाँ पे है तो वहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब कि आर. अब वो जो डिस्टेंस आपको लेना है वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा. कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा. मतलब कि यहाँ पे आपको जो डी ए लिया हुआ है, आपने यहाँ पे जो डी ए लिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से ओ एक्स तक का डिस्टेंस, मतलब कि कौन सा डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और वो डिस्टेंस कौन सा हो गया? वाई. और ये डी ए से एक्स ओ वाई तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एक्स. क्लियर? मतलब कि ओ वाई एक्सिस से आपका डिस्टेंस, अगर आप स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ले रहे हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का डिस्टेंस आपका हो जाएगा x1, x2, x3 अप टू इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स. एंड ओ एक्स एक्सिस से आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y1, y2, y3 अप टू इनफाइनाइट मास कंपोनेंट्स. Now, taking second moment of all the small elements about the OX axis, so Ix is equal to integral part of y square dA. Here, यहाँ पे आपने y square लिया हो, ठीक है. अपना इक्वेशन कौन सा था? इन जो इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, वहाँ पे इक्वेशन आपका था I इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम आर स्क्वायर, राइट, इंटू डी आर. ये आपका इक्वेशन था. तो यहाँ पे आई एक्स जो है, ठीक है, आपका इक्वेशन जो था I इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम आर स्क्वायर
डी इंटू आर। क्लियर? ये इक्वेशन था कौन किसके लिए था? ये इक्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो भी पार्ट लिया हुआ है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट लिया हुआ है, तो एम इज वी कैन निग्लेक्ट द मास। ठीक है, तो बचा क्या? आर। अब आर क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर हम एक्स एक्सिस ओ एक्स एक्सिस के रेफरेंस में अगर हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, then the I is converted into the IX, I is converted into the IX and the radius of gyration, मतलब कि रेडियस जो भी होगी, the distance is y। ठीक है, डिस्टेंस का क्या होगा? y। तो r is equal to y, so the equation is converted into Ix is equal to integral part of y square into dA। क्लियर? सेम चीज यहाँ पे होगी आई वाई में। ओ वाई एक्सिस के रेफरेंस में अगर लेंगे तो वाई आर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इंटीग्रल इक्वेशंस मिल गए आपको। दस द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन क्या होगा? mm⁴ से cm⁴, राइट, बिकॉज द एरिया स्क्वायर आपको ढूंढना है। अब standard shape derivation, how we can derive the equation for the rectangle portion, right। यहाँ पे हमको एक फिगर दी हुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक एरिया है जहाँ पे हमें इस जो ये डार्क वाला पोर्शन है, डार्क वाले पोर्शन का हमें क्या करना? फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो वो शेप क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल शेप है। ये जो डार्क पार्ट है वो रेक्टेंगल शेप नहीं है, थोड़ा यहाँ से शेप में चेंज है, लेकिन हमारे पास जो भी ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसका बहुत ही छोटा पार्ट हम लेंगे, बहुत ही छोटा पार्ट लेंगे तो वो हम रेक्टेंगल में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो differential strip parallel to the x axis is chosen for DA, राइट। ये जो हमारे पास शेप है उसका एरिया हमारा क्या है? A। उसका एरिया क्या है? A। अब हमें ये सबसे छोटा वाला पार्ट जो हमें दिया हुआ है उसका एरिया अगर हमें लेना है तो वो हो जाएगा DA, राइट। अब दूसरी चीज कि हमें किसके एक्सिस के बेस पे लेना है? हमें लेना है एक्स एक्सिस के बेस पे लेना है। ठीक है, तो आई एक्स हमें लेना पड़ेगा। अब आई एक्स लेना है तो आई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है? वाई। सो इक्वेशन क्या होगा? आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए, राइट। सो द डी ए इज इक्वल टू व्हाट? डी ए इज इक्वल टू आई डी वाई। डी ए क्या है? सॉरी, डी ए क्या है? एल डी वाई। एल डी वाई का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है एल। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी हुई है? एल। ठीक है, और इसका जो विड्थ है वो हमें डी वाई लेना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है? एल। विड्थ कितनी है? डी वाई। सो द डी ए इज इक्वल टू एल डी वाई। सो वी पुट द इक्वेशन ऑफ डी ए इन द इक्वेशन ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अगर हम इस इक्वेशन में डी ए की वैल्यू यहाँ पे जो डी ए है उसकी वैल्यू एल डी वाई रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ Ix is equal to integral part of y square into L dy। ठीक है, अब L जो है वो कांस्टेंट पार्ट है, L जो है वो क्या है? कांस्टेंट पार्ट है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। L को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ y, L बाहर हो गया, y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? y क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? वाई क्यूब डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फॉर द सिमिलर ट्राइंगल एल बाई बी, फॉर दिस सिमिलर ट्राइंगल एल अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा? एच माइनस वाई डिवाइड बाय एच। ठीक है,
किसके लिए लिया हुआ है कि हमारे पास जो टोटल ट्राइंगल है, ठीक है, फुल ट्राइंगल जो हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। यहाँ पे हम दो ट्राइंगल को सोच रहे हैं, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल ये आपका हो गया और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, पूरा ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल कहलाए जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहे जाएंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो रेशियो है, ठीक है, साइड का रेशियो वो सेम रहेगा। मतलब कि जो लेंथ रेशियो है L अपॉन बी इज इक्वल टू H माइनस वाई अपॉन H, वो सिमिलर रहेगा। मतलब कि हमें L की वैल्यू लेनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू लेनी है, L की वैल्यू। L की वैल्यू क्या आएगी, B इंटू एच माइनस वाई डिवाइड बाय H। तो सिमिलर चीज जो हमें ये इक्वेशन मिला है डी ए इज इक्वल टू एल इंटू डी वाई, उसमें अगर हम ये एल की वैल्यू रख देंगे तो डी ए की वैल्यू क्या आएगी, डी ए इज इक्वल टू बी एच माइनस वाई डिवाइड बाई एच इंटू डी वाई, राइट। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम किसकी मदद से, डी आई एक्स की मदद से, और वैल्यू उसकी रेंज क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू एच, ठीक है। क्यों y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू एच लिया, क्योंकि हम ओ एक्स की सापेक्ष में, मतलब कि ओ एक्स को रेफरेंस लेकर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ओ एक्स से रेफरेंस को लेकर इंटीग्रेशन करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ओ एक्स पर आएगी। मिनिमम वैल्यू ओ एक्स पर क्या होगी, y की 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जहाँ पर ट्राइंगल पूरा कंप्लीट होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो डिस्टेंस है वो क्या है, h, ठीक है। तो जो रेंज हो गई आपकी वो हो गई y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू एच, क्लियर। अब वैल्यू रखने के बाद आपका जो इक्वेशन बनता है, ठीक है, वो इस तरीके से बनेगा। आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और उसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो आपका जो इक्वेशन बनेगा आई एक्स का, वो बनेगा आई एक्स इज इक्वल टू बी एच क्यूब डिवाइड बाय 12। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन है आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12, वो है आपका रेक्टेंगल शेप के लिए, ठीक है। या तो फिर आप स्क्वायर शेप के लिए भी यही इक्वेशन आप ले सकते हो, बी एच क्यूब बाई 12। लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर शेप के लिए क्या होता है, बी इज इक्वल टू एच, स्क्वायर शेप के लिए क्या होता है, बी इज इक्वल टू एच। सो वहां पे क्या होगा, बी रेस टू 4 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अगर स्क्वायर शेप है तो बी रेस टू 4 डिवाइड बाय 12। अगर रेक्टेंगल शेप है तो आपका क्या हो जाएगा, बी एच क्यूब बाय 12। अब उसी तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये जो हमने डेरिवेशन किया उसी की मदद से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। कंसीडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ए डैश, ठीक है। ये एक्सिस को रेफरेंस में लेकर आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्लियर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी। दिस एक्सिस बी बी डैश एक और एक्सिस है आपकी जो पास होता है सेंट्रोइड, ठीक है, पास थ्रू द एरिया सेंट्रोइड, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास होता है, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस। उसको क्या कहेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस। सो द इक्वेशन y इज इक्वल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई डैश प्लस डी होल स्क्वायर, वाई डैश प्लस d whole square, where the d is the distance from the centroidal axis to the axis of rotation and y dash is the distance from the centroidal axis to the mass element, right. So the equation can be changed as integral part of y dash square dA plus 2d integral part of y dash dA plus d square into integral part of dA, right. So यहाँ पे हमें क्या करना है, y dash इंटीग्रल पार्ट ऑफ डी ए का इंटीग्रल क्या होगा, ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए डी स्क्वायर, और ये जो पार्ट बचा आपका वो आपका हो जाएगा आई बार, मतलब कि नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो आई इज इक्वल टू आई बार प्लस ए डी स्क्वायर, क्लियर। और ये जो है यहाँ पे अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, क्लियर। तो आपको इसी इक्वेशन में ये जो आपको इक्वेशन नया मिला हुआ है, क्लियर, आई इज इक्वल टू आई बार प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आई बार सबसे पहले चीज फाइंड करनी है। आई बार क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई डैश डी एस प्लस
2d इंटीग्रल पार्ट ऑफ y डैश dA। अब y डैश कितना है अगर आपको पता होगा तो आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। और y डैश हर एक अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल पार्ट है, ठीक है। अब रेक्टेंगल शेप में मास सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे होगा। अब वहां से अगर कोई सेंट्रोइडल एक्सिस पास होती है, वहां से अगर कोई सेंट्रोइडल एक्सिस पास होती है तो वो क्या करता है, दोनों शेप पूरे रेक्टेंगल को बाइसेक्शन में कन्वर्ट करेगा। बाइसेक्शन का मतलब कि ये जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, h/2। ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, h/2। अब h/2 डिस्टेंस लेंगे, मतलब कि y डैश का डिस्टेंस कितना लेना है हमें, h/2। और वो वैल्यू अगर आप रख रहे हो आई के इक्वेशन में तो आपको आई बार की वैल्यू मिलेगी, क्लियर। सेम चीज अगर आप ट्राइंगल लेते हो तो उसका जो मास सेंटर होगा वो h/3 डिस्टेंस पे होगा। और सर्कुलर सेक्शन में भी सेम सेंटर पर ही होता है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस मतलब कि जी ये जो वाई डैश की वैल्यू है वो हर एक शेप के लिए अलग अलग आपको मिलेगी। और अलग अलग शेप की वाई डैश की वैल्यू अलग अलग आप रखोगे तो आपको वाई आई की वैल्यू मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अलग अलग शेप का। यहाँ पे आई सेक्शन भी दिया होगा, डी सेक्शन भी दिया होगा, सी सेक्शन भी दिया होगा कि हर एक अलग अलग सेक्शन का आपको अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप के लिए आपको सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।